जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरा presentation will be on Dr. Sher Ali Tareen's lecture and partly his text as well. आप लोगों सबको मेरी आवाज़ आ रही है clearly? जी बहुत क्लियर आ रही है आवाज माशाल्लाह। Okay, great. So उनका जो idea था that he had put forward in his lecture and in his text, uh, from what I understood, it all refers to this idea of epistemic violence, जो हम लोग post colonial literature और post colonial theory में बहुत देखते हैं, especially in the work of ये एक Indian lady है जिन्होंने 1988 में एक text शाया किया था by the name of Can the Subaltern Speak, और उसमें इन्होंने जिक्र किया था अबाउट एपिस्टेमिक वायलेंस, और उसके बाद फिर काफ़ी सारे पोस्ट कॉलोनियल थिंकर्स ने इसके ऊपर काम किया है. So I will just read out the quote that I have from her, in which she says, "The clearest available example of such epistemic violence is the remotely orchestrated, far-flung and heterogeneous project to constitute the colonial subject as other, capital O other. This project is also the obliteration of the trace of that other in its precarious subjectivity." Uh, इन्होंने आई मीन अनफॉर्चुनेटली पोस्ट कलोनियल थिंकर्स का एक फ्लॉग ये होता है कि ये लोग बहुत ज़्यादा थोड़ा सा फॉर्मुलेट करके और घुमा फिरा के बात करते हैं, बट दी सिंपल सिंपल थिंग इज़ कि जब कलोनियल सब्जेक्ट सिर्फ अपने अस्करी ताकत से हावी नहीं होता कलोनियल सब्जेक्ट के ऊपर, but also takes over the subject through systems of subjugation through knowledge. So जिस तरह हमारे पास वो एक एग्जाम्पल है जिसमें मिनिस्टर ऑफ द कॉलोनियल एम्पायर वो बोलते हैं कि all the books of colonial India don't compare to one shelf of the library of the empire. उनको जैसे एक आई बिलीव एटलीस्ट वन लेक्चरर हैज़ आल्सो रेफर्ड टू दैट. सो उन्होंने सारा हिस्ट्री ऑफ नॉलेज ऑफ इंडिया को डिसमिस कर दिया एज वर्थलेस, और उन्होंने बोला कि हमारा एज इन द कॉलोनियल एम्पायर जो हम हैं, उन हम उनके मुकाबले में कहीं हाथ आगे हैं. So this so what this does is that this is a process of alienation, जहाँ पे आप अपने हिस्ट्री से एलियनेट हो जाते हैं, आप अपने ही सोच से एलियनेट हो जाते हैं, not just through military power but also through forms of uh, epistemic violence, or which is related to epistemology, अगर आप लोगों if you're familiar with that term. The other scholar that I have quoted here is a Spanish scholar, and he says epistemic violence is violence exerted against or through knowledge. Is probably one of the key elements in any process of domination. It is not only through the construction of exploitative economic links or the control of the political military apparatuses that domination is accomplished, but also, most importantly, through the construction of epistemic frameworks that legitimize and enshrine those practices of domination. What that means is that, as you might have understood, uh, behind the military domination, there is an entire intelligentsia that dismisses first and foremost the colonial subject as being inferior. That's why it becomes the white man's burden to bring civilization to the colonial subject, rather than it just being it's not as arbitrary as we might think. Of course, movies में हम लोग शायद we might not get the whole idea that there is an entire you know intelligentsia working in that way, but yes, it is, especially for empires that do it so in such a methodical way. And that's one of the key differences in when we compare modern day colonization to empires of the past, that when you have modern day record keeping and calculation, that is unprecedented, because that brings in a whole new kind of violence, which, as we have just seen, is done through knowledge. So this is just an image. This is just an example of that.
that slavery, that mental slavery. और अगर आप लोग बॉब मार्ले के म्यूज़िक से वाकिफ़ हैं तो उनका एक बहुत अच्छा गाना है बाय द नेम ऑफ रिडेम्पशन सॉन्ग, और उसमें बॉब मार्ले सेज emancipate yourself from mental slavery. So I think he was well aware of what was going on. In other words, you can also call this epistemic totalitarianism, because it's a the colonizer presents to you a complete worldview. It's not just that he tells you that, okay, we do this better than you or we do that better than you, but the colonizer simply says, no, 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 we do everything better than you. We Our practices of language speaking, our practices of dress, our culture, our religion, everything that we do, we bring to you a completely updated version 3.0 of how you should live. So give up your old ways of living, and here is a new thing. So related to losing your ways of knowing, it's also the logical conclusion is that you also lose your ways of being. And uh, I'm sure ये लोग I mean ये काफ़ी visible होता है within the former colonial in the former colony itself. जो लोग पाकिस्तान और इंडिया में रह रहे हैं, आई एम श्योर दे कैन फील दिस एज आई हैव फेल्ट जब मैं वहाँ पे रह रहा था. लेकिन जब आप अपने आप को इससे एक्सपेट्रिएट कर देते हैं और आप एक और जगह पे जाके रहते हैं, सो देन यू गो एंड सी पीपल द डायस्पोरिक कम्युनिटीज़, जो पाकिस्तानी एंड इंडियन कम्युनिटीज़ इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप, उनके अंदर ये सोच मेरे ख्याल में ज़्यादा नज़र आता है, because they bring with them this idea of this having been colonized, and they're constantly trying to be that version 3.0. So शेर अली तरीन के लेक्चर में उन्होंने 5 पॉइंट्स पे स्ट्रेस किया था about how colonial violence or epistemic violence, although he does not mention the words epistemic violence himself, so I don't want to say that he said that, lekin I believe that he was referring to it. And for him, this epistemic violence has 5 key effects on religion, and I've put them here as: number 1, reducing religions to beliefs, excluding practices such as acts and intrapersonal affairs. And मैंने इसमें add किया creative expression, because creative expression is a part of religious freedom or religious identity as well. Number 2, reducing religions to sacred texts, which according to him was a Protestant notion. Limiting religion to private sphere of personal piety, separating it from the public sphere of politics, which takes the claws and the teeth away from the tiger. Then you just have a tamed animal sitting in front of you, not able to resist. Undermining the importance of external forms of authority in accessing religious knowledge. मतलब उनके अल्फाज में अगर मैं आपको उनको कोट करूँ तो he said something to the effect that किसी खारिजी ताकत की ज़रूरत नहीं हो आपको दीनी मारिफत हासिल करने के लिए. A product of the notion of the sovereign self is reflected in this, which most likely comes from the French Revolution. And number 5, being critical of supernatural or scientifically unproven phenomenon. In fact, मुझे एक प्रोफेसर ने बहुत इंटरेस्टिंग बात की थी टाइप के ऑन अ टैंजेंट, एंड शी सेड कि अगर आप मिरेकल के वर्ड से आप देखते हो, then you have already given in to the framework of science, because for miracles, for a metaphysical worldview such as Islam, miracles are not impossible. They're always possible. So हम लोग उनको miracle consider नहीं करते, because miracle means something that is beyond the realm of possibility. So as soon as we start calling them miracles, we have already given in to that scientific worldview. But that's another point. और ये किस तरह how do these differences come about? I believe Sher Ali mentioned that one of the mechanisms, one of the machineries put forth by the colonial order is the machinery of the senses. And even now, I think we see this. I think we see this even
more clearly now than before, but this mechanism was put in place a long time ago, and I hope that it's all it's clear to everybody how something like the census can have such a profound effect, because I think वो उन्होंने इतनी अच्छी तरह समझाया था. I might not be able to do justice to how he explained it, and these mechanisms and the way that uh, epistemic violence affects religion, this manifested itself in Maulana Qasim Nanutwi's polemic or mubahasa debate with the Pandit Saraswati, in that he was constantly alluding to the impossibility of the miracles of Islam, in that our miracles are scientifically proven, whereas your miracles do not have that proof. So that's it from my end. अगर कोई सवाल है, if I can help in any way, please let me know. जो मेरा टेक ऑन कॉलोनियल रूल है और रूल में my take is कि जी के it was partially deliberate by the Britishers that they wanted to rule and thus overpower our religious beliefs so that we are subdued as much as possible intellectually as well. So with that perspective, something was deliberate and others it was not as deliberate as we may think right now, because it was a scientific age, industrial revolution coming up in Europe, and it has its implications on the thinking of the British in India. Meaning by the census was a tool to govern rather than to divide. Although कि उसका consequence divide हुआ और शायद communalism बहुत बढ़ना शुरू हो गया और ये पहली दफा sensibility आई कि these are they are separate groups, but probably primarily उन्होंने एक administrative tool के तौर पे census को start किया था. Secondly जो मैकॉले की रिपोर्ट है उसके ऊपर मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि जी कि इट वाज मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि जी कि इट वाज नॉट ओनली टू रिजेक्ट द ओल्ड वे ऑफ टीचिंग, बट दे सेड कि जी कि संस्कृत एंड पर्शियन, संस्कृत फॉर हिंदूज एंड पर्शियन फॉर मुस्लिम्स, these are old languages and thus cannot support the modern scientific developments which are going on in Europe to be easily translated into the Indian way of teaching, and hence they did not actually stop the Hindus and Muslims to study Sanskrit or Persian. In fact, they said that they won't give the financial support to all those madrasas and dharamshalas and the उसको क्या कहते हैं धर्मशाला क्या कहते हैं something shala. Financial support would only be given to those educational institutions which are going to teach English, and the prime reason they gave was that this is how the European modern knowledge could easily be transferred to the Indians. Although कि उनका जो syllabus and methodology of teaching was definitely to produce the staff which was required for running the administration, which was primarily British superiority, and the officials were all British. The clerks, the supporting staff was to be provided by the Indian educated class. That is first one. Divide and rule was definitely there, and we understand how they did it. PGK is as a consequence of their entry. Secondly, it
was not only military superiority which they through which they conquered, they openly, blatantly employed intrigue to overcome whatever the adversary that was. It was evident in Bengal when they fought against Sirajuddaula. They had backdoor negotiations done with his uncle that if he betrays Sirajuddaula, his uncle, I am forgetting his name, he would be made Nawab, and he was made Nawab, and then he in turn opened his treasury to Lord Clive, who was the Governor General, and in turn Lord Clive, Lord Clive, नहीं, Clive का क्या Governor General, he was Governor General. So Governor General Clive took certain amount from the treasury, Bengal treasury, and took it as his own. And in turn, he was actually put under trial in England for taking the bribery. And then he said that in his defense, in England, while the trial was going on, he said that the whole treasury was open to him, and it was his magnanimity that he only took whatever amount he took, and he was his in a way उसकी बड़ाई समझ लें कि मैंने सिर्फ इतना सा हिस्सा लिया था और he was called back by East India Company, and after 3 years or so he was sent again because by that time the revenues were getting low. It is the only time, frankly, it was the only instance of history in which the whole country was invaded by a private company. It never in history, ever, any place in the world, it happened like that. It was only in India that it happened like that. And secondly, another thing which is actually for me, it was when once he was called back for the second time, after he bought through his money, bought membership of the parliament, because apparently जो पाकिस्तान का सिस्टम अभी है वो पार्लियामेंट में था कि you could actually bribe people and secure a seat for himself in the parliament. एक साल पार्लियामेंट में रहा and then he committed suicide. वो जो क्लाइव जो सबसे ज़्यादा मशहूर है, क्लाइव ऑफ प्लासी जो है, तो he committed suicide. और फिर जो एक और पॉइंट था कि जी के although they bought ये कार्टोग्राफी यानी मैप मेकिंग में बहुत उन्होंने एडवांसमेंट की, और जैसे वो वन ऑफ द लेक्चरर वाज सेइंग कि उसमें उन्होंने वो मुसलमानों को वेस्टर्न साइड और ईस्टर्न साइड पे रख दिया और बीच में which is equal amount of Muslims were in the center, उनको कहीं रिप्रेजेंटेशन नहीं थी. So उन्होंने बहुत डिफरेंट तरीके से इस चीज़ को, कम्युनलिज्म को उन्होंने फिलिप दी, यानी उसको एनहांस किया कि जी के बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस के जी पढ़ाई में, सेंसस में वैसे. एंड देन अगेन मतलब आई वाज सरप्राइज्ड कि जी के देयर इज अ इंडियन पर्सन हु राइट्स कि जी के जब मुस्लिम लीग वाज इनकरेज्ड to be formed as a Muslim league separately from Hindus, again with the idea by the Britishers कि यार ये इन दोनों में वो हो जाए, split हो जाए, so that it is easier for them to govern. These are the perfect. So my lecture will be a brief overview of the whole class that took place so far. So I'll start with Kamil Khan Saab's lecture. But prime focus will be on the surplus कि human society's progress कैसे करते हैं, civilization एक बनती कैसे, scratch से. तो मैं सामने अभी तक देखने में आसानी हो और शायद अगर बीच में बोर्ड की जरूरत हो तो जरूर. अच्छा, so we start off as इंडिया में
या फिर जो जेरूसलम के आसपास एक एरिया है ये डॉट, यहाँ से, या अफ्रीका में कहते हैं जहाँ से पहले ह्यूमन शुरू हुए और फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया जहाँ में स्कैटर हुई, ये एरिया है इंडिया, पाकिस्तान, ये ऊपर मिडिल किंगडम, चाइना, यहाँ पे ईस्ट एशिया। तो यहाँ से हम कहीं शुरू हुए, आहिस्ता आहिस्ता माइग्रेट करते करते इधर जो, अच्छा, सो वी स्टार्ट ऑफ एज हंटर गैदरर सोसाइटीज जो कि डिफरेंट जगहों में जा रही हैं, और यहाँ पे ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इट इज द लॉ ऑफ द जंगल। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक पॉइंट था कामिल खान मुफ्तार साहब से, जो उन्होंने कहा था कि उस टाइम पे हम इक्विलिब्रियम में थे, जैसे ये आजकल हम अनसर्टेनिटीज जो कि एक डिसइक्विलिब्रियम है कि इनइक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये सब चीज़ें नहीं थी उस टाइम पे। और क्योंकि हंटर गैदरर सोसाइटी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था, जो स्ट्रॉन्गेस्ट था वो सबके लिए केयर करता था, लेकिन ये था कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट था वो सर्वाइव करता था इन सोसाइटीज में। उसके बाद जो मेन प्रोग्रेस आता है जब ह्यूमन एवोल्यूशन और सिविलाइजेशन प्रॉपर स्टार्ट होती है, आफ्टर हंटर गैदरर सोसाइटीज ऑल्दो दीस हैव देयर ओन वे ऑफ लिविंग, वो आती है जब एक सरप्लस प्रोड्यूस होता है, जब एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी आती है, जब ह्यूमन डिस्कवर करते हैं कि ठीक है, एक इन बायोलॉजिकल बोटैनिकल एवोल्यूशन से पता चलता है कि यार गंदम भी उग सकती है या चावल उग सकते हैं, और ये हम लोग इसको प्रोसेस करके ना स्केलेबिलिटी है इस चीज़ में कि हम एक मैदानी जगह में इसको उगा के हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो तब ये आता है कि आहिस्ता आहिस्ता वो फिर एक चीज़ पावर सर्कल स्ट्रॉन्ग होता रहता है एक ही साइड पे, जैसे मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ तो मैंने कहा ये पूरा एरिया मेरा है, जो यहाँ पे फटा करेगा मैंने उसको करवा देना। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है लैंड लॉर्ड्स पे, जिससे फ्यूडल्स आते हैं, यहाँ से इनकम इनइक्वालिटी आती है कि ये सारे मेरे सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे मेरे पेजेंट्स हैं, यहाँ पे काम करेंगे। और प्रोग्रेस कैसे आता है, क्योंकि जब सरप्लस प्रोड्यूस होता है ना, तो डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन की तरफ जाता है। ये मैं एडम स्मिथ के कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करूँगा, जिसमें वो कहते हैं कि जब इंसान के पास इतना फ्री टाइम होगा कि वो करने लगेगा, तो फिर स्पेशलाइजेशन आती है जॉब्स में। जब पेजेंट्स ने सरप्लस प्रोड्यूस करना शुरू किया, तो फिर यहाँ पे सपोज उसने वेपन्स में कुछ लोगों ने फोकस करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको उससे सस्टेनेबिलिटी मिलने लग गई। उसने अपने लैंड प्रोटेक्ट करने के लिए XYZ बंदे ने यहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिए, स्टोन के वेपन से शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेटल, और फिर ये टाउन सेंटर्स बन गए। इसके आगे एक फोर्ट बना दिया, सपोज लाहौर फोर्ट 1000-1500 साल पहले क्या होगा, एक लकड़ी के फट्टे से लगाए हुए होंगे। आहिस्ता आहिस्ता एम्पायर्स आते हैं, उन्होंने उसकी एवोल्यूशन में कभी उसको कवर कर दिया मट्टी से, फिर उसको और स्ट्रॉन्ग कर दिया, फिर ईंटें लगा दी। सो दैट इज हाउ ह्यूमन सोसाइटीज प्रोग्रेस। पहले फिर टाउन सेंटर्स का कॉन्सेप्ट आता है सिटीज का, एंड आफ्टर दैट दे टर्न इनटू एम्पायर्स। द फर्स्ट एम्पायर दैट वी हैव इन हिस्ट्री इज साइरस द ग्रेट एम्पायर, जो कि पर्शियन एम्पायर था, क्योंकि यहाँ कहीं से शुरू हुआ था, यहाँ से लेके, और बाय द वे साइरस द ग्रेट की एम्पायर लिमिट थी वो टेक्सला और पंजाब तक आती थी, जो कि लाहौर और दिल्ली तक रफली एरिया बनता है। एंड दिस एरिया, द एरिया अराउंड टेक्सला वाज द रिचेस्ट टेरिटरी ऑफ साइरस द ग्रेट एम्पायर। सबसे ज्यादा ट्रिब्यूट उसको हर साल यहाँ से मिलता है। और फिर आज दिया है सरप्लस का। तो सरप्लस है क्या? सरप्लस में जो सोसाइटीज एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी बेसिस पे वो आगे प्रोग्रेस कर सके। थ्रू आउट हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटीज प्रोग्रेस करती हैं कि वो अपना सरप्लस किस एरियाज में लगाती हैं। जो प्योरली मिलिटरिस्टिक एम्पायर्स होते हैं, जैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट का सरप्लस तो बहुत था, लेकिन वो सारा सारा मिलिट्री में लगा। इसीलिए अलेक्जेंडर की डेथ के बाद ही सारे जो उसने गवर्नर्स अपॉइंट किए हुए थे, जो इजिप्ट में है, वो कोई हेराक्लिस था, कोई सेक्लूस था, जो जो नाम थे उनके, वो सारे अपने अपने एरियाज में वहां पे डायनेस्टीज बन गई। या फिर आगे कॉन्सेप्ट आता है कि सरप्लस को थ्रू आउट यूटिलाइज कैसे किया गया इस कोर्स की। अगर हम देखें तो जो मुगल से पहले सारे सल्तनत पीरियड आती है, या फिर जो इंडियन आते हैं, मौर्यंस, गुप्तास, या विजयनगर जो कि साउथ इंडियन साइड पे, जैसे कल साउथ इंडियन साइड का जिक्र भी हो रहा था, उन सबका सरप्लस का फोकस था कि वो लोकली यूटिलाइज कर रहे थे, इधर ही लगा रहे थे। इसलिए जब तक औरंगजेब का टाइम था, 25 से 26% तक जीडीपी दुनिया का हिंदुस्तान वाले एरिया में, जो कि बर्मा से लेके काबुल तक जाता है, इस एरिया में प्रोड्यूस होता था दुनिया का जीडीपी। 25 to 26% रफली, डिपेंडिंग ऑन किस एस्टिमेट से, लेकिन रफली क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी वाज प्रोड्यूस्ड ओवर हियर। जब ब्रिटिश आते हैं, वो क्या करते हैं, सरप्लस का सारा के सारा जो इधर फोकस हो रहा होता है ना, वो फिर कम होने लग जाता है। और वो कैसे होता है, जैसे हम सुनते हैं इस तरह की चीजें कि कॉलोनाइजेशन ने ये किया, ये तो अभी एपिस्टेमोलॉजिकल कॉलोनाइजेशन की बात हो रही थी, और आपने किया कि पैसे कैसे लूटते हैं, लेकिन फिर वो लूट के उसको स्मार्टली प्ले कैसे करते हैं। पैसे लूट के, ये तो हम जानते हैं सारे के सारे वहां पे पैसे लगे, लेकिन कैसे लगते हैं, इधर से एक ट्रेन की पटरी चलती है यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक आती है, कहते हैं हम ये प्रोग्रेस दे रहे हैं आपको, इधर से आपको टेलीग्राफ भी दिया हमने, और ये हमने पटरी भी दी आपकी, और इधर से यहाँ से भी कनेक्टेड है। ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, इनको हम इंडिपेंडेंट रखा हुआ है। अब आप लुकिंग बैक आप ये देखते हैं कि ये ट्रेन की पटरी सारी कनेक्टेड कहाँ पे, पोर्ट सिटी से, क्योंकि पोर्ट सिटी से सारी की सारी चीजें इधर जाएंगी। तो ग्रेट गेम का कॉन्सेप्ट कौन सा था, अफगानिस्तान को। अब तो अफगानिस्तान का एक बहुत डिस्टर्ब एरिया कहलाता है, लेकिन जिस टाइम पे बाबर या अकबर का एरिया था, उन्होंने तो अपनी सबसे ज्यादा फोकस उनका यहाँ पे था, क्योंकि सिल्क रोड जहाँ पे था, उनका फोकस ये था कि इस एरिया को कॉन्कर करें, बिकॉज दिस वाज अ डेवलप्ड एरिया। बाबर
हिंदुस्तान आगे भी रोड होके थक गया कि फरगाना के गार्डन्स नहीं है, वहाँ के फ्रूट्स नहीं मिलते मुझे जो टेस्ट था उनका, वहाँ का पानी नहीं मिलता मुझे, इसलिए उनका फोकस ज्यादा इस साइड पे रहा था। बट ब्रिटिश ने कॉलोनाइजेशन में ये काम किया था कि ये सब एरिया को डिस्टर्ब करके रख दिया था। एक इसका ये फैक्टर था कि उनके सी रूट्स दोबारा नहीं एक्टिव हो गए थे। पहले सारा सिल्क रूट्स था जो कि रोड से जाते थे। अब जो हम ओवर का कॉन्सेप्ट सुनते हैं ना, वन बेल्ट वन रोड, वो बेसिकली इसको रिवाइवल ऑफ द सिल्क रूट था, क्योंकि उन्होंने सारा तो फोकस यहाँ से लिया था। इसीलिए जो एपिक सेंटर ये था ना, जो मुस्लिम्स के पास था, आहिस्ता आहिस्ता अगले 200-250 साल बाद एनलाइटमेंट वगैरह वहां पे आते गई, स्पेनिश इंक्विजिशन, और उनके बाद से उन्होंने साउथ अमेरिका से वो सारे के सारे गोल्ड एक्सट्रैक्ट करते रहे, इसलिए एक वो फोकस आ गया और ये डाउनफॉल आ गया। तो इसलिए कॉलोनाइजेशन की सारी जो भी चीजें थी वो वहां चली गई। ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था मेरे एंड से। कोई सवाल? बहुत जबरदस्त, मजा आया। एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चंस, डिबेट और आंसर एनी? और मतलब कि जो हमारी वेल्थ इंडिया से लूटी गई, वो दे से कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज फंडेड बाय द लूट दे like there's a book, The Inglorious Empire by Shashi Tharoor, उसने ये सारी आर्गुमेंट्स बताई हैं कि एक सारी पटरी का स्केलेटन ही हुआ है कि जो कि एक्सट्रैक्ट करके चाहिए सोर्सेज। यूजुअली तो होता है ना कि जैसे जर्मनी में जब ट्रेन का वो सारा सिस्टम बना था या फ्रांस में बना था, वो था इंटरकनेक्टेड सिटीज का, क्योंकि उस तरह ट्रेड होता और फिर कनेक्शन होती। यहाँ पे सिटीज कनेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट था। इंटरेस्टिंग। एक ये चीज। दूसरी है कि उसने कहा था कि बंगाल के जो फाइन मुस्लिम थी, जो कि कहते हैं आवाज इतनी हल्की होती थी, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड वाज रियली फेमस, तो वहां पे उनके बकायदा जो कि मैन्युफैक्चरर्स उनके थंब स्मैश कर दिए गए और हड्डियां तोड़ दी गई। और दैट्स व्हाट दे फाइंड दीस डेज कि उनको बड़े-बड़े स्मेल्टर्स मिलते हैं जहां पे स्टील और कॉपर मैन्युफैक्चरिंग की चीजों का काम होता है, जो कि डिस्ट्रॉय करके रख दी। एंड बाय द वे इट इज सेड कि मुगल एरियाज और उसके बाद ये एरिया एक्चुअली रूरल नहीं था, अर्बन था। छोटे शहरों में बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन रेट था वहां पे, 60-65% तक एटलीस्ट दिस एरिया वाज अर्बनाइज्ड इंडिया रफली एज वी स्पीक। तो मोहनजोदाड़ो से ही चल रहा था। हां, मोहनजोदाड़ो से ज्यादा ही अर्बनाइज्ड था। सो द ब्रिटिश एक्चुअली उन्होंने यहाँ के सिटी सेंटर्स को डिस्ट्रॉय किया और फिर उनको रूरलाइजेशन पे इंक्रीज किया। 60% जो पॉपुलेशन थी वो अर्बनाइज्ड, एग्जैक्टली। I mean, स्टैटिस्टिक्स तो 70-75 तक भी जाते हैं। छोटे शहर तो तबाह कर दिए ना, दीपालपुर, भेरा, मियानी, इतने सीतपुर, उच्च, आप गिनना शुरू करें, they were all on the trade routes, all these towns. लेकिन आज से ज्यादा उस वक्त अर्बनाइज्ड थी पॉपुलेशन। दिस इज सरप्राइजिंग। हमारे हम तो समझते हैं कि 80-90% जो थे वो रूरल। बाय द वे, रेड समवेयर कि अच्छा, आई डोंट नो इस बात पे किसी से कि, बट आई थिंक आई रेड समथिंग लाइक दिस समवेयर कि जब ब्रिटिश आए थे उन्होंने देखा था इधर लोगों को कितना पढ़ना लिखना आता है, परसेंटेज काफी हाई थी, 70-75%। वो तो सही है। हां, ठीक है। लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको रिवाइज कर दिया, उनकी फिर अगली दफा से सेंसस से कुछ सालों बाद सेंसस उन्होंने इंग्लिश में करना शुरू कर दिया। उसकी लिटरेसी रेट वो आप लोगों ने लगता है पढ़ा नहीं है। वो जो डॉक्टर साहब आए थे उनका पेपर में फिगर दिए हुए यही वाले जो आप कह रहे हैं, शायद उधर ही पढ़ा उधर डॉक्टर फराज का जो पेपर, क्योंकि उसके बाद उन्होंने फिर सेंसस इंग्लिश में शुरू कर दिया था ब्रिटिश ने कि इंग्लिश को रीड और राइट कितने लोग जानते हैं। And his point was कि education was so easily accessible and the numbers, उसमें 2-3 केस स्टडीज थी बंगाल वगैरह की कि बहुत ज्यादा। So that's how मेजॉरिटी पॉपुलेशन की जो इकोनॉमी जो थी वो एग्रीरियन नहीं थी, बल्कि ट्रेड और ट्रेड, तभी तो गिल्ड्स बने हुए थे, ट्रेड से मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड। एग्जैक्टली। So agrarian was a part of it, but yeah, major urbanization थी ना जिसको सस्टेन करनी थी। तो मेरा एक सवाल है, पता नहीं से रेलेवेंट है कि नहीं, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें आ रहा है कि जो ब्रिटिश हैं वो अगर इन रिसोर्सेज को जो इंडो पाक में मौजूद थे वो वाइजली इस्तेमाल करते, तो क्या यही रिसोर्सेज जो आप कह रहे हैं रिच ट्रेडिशन है, तालीम भी बड़ी कीमती है और उससे वो बड़ी खूबसूरत चीज़ें बना रहे हैं, तो अगर वो इनको डिस्ट्रॉय नहीं करते, उनको इस्तेमाल करते, तो उनकी वेल्थ में या उनके जो एरिया था उसमें ज्यादा चीजें इस्तेमाल बेहतरी की तरफ नहीं जानी थी, उनकी वो वेल्थ नहीं होनी थी। नहीं, क्योंकि वजह ये एक जैसे कौन सा कॉन्सेप्ट है कि आप कितना उस टाइम पे एक कॉन्सेप्ट था, वो है मर्केंटिलिज्म। मर्केंटिलिज्म ये कि आप सिंपली ये कि आप जितना ट्रेड कर रहे हैं ना, अब जितना ज्यादा लोगों को दे रहे हैं और जितना ज्यादा पैसा वापस ले रहे हैं लोगों से, यानी आजकल की इंटरनेशनल इकोनॉमी से, लेकिन वो सारा का सारा गोल्ड बेस्ड था। बेसिकली आप जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आपको वापस में अगर गोल्ड का रिटर्न मिल रहा है, यू आर गुड टू गो, ठीक है। सो दैट्स व्हाट दे डिड। वो बंगाल में आते हैं, वो देखते हैं उनको फॉर सेंचुरीज वो यानी ना डेफिसिट में रहते हैं ट्रेड में,
सिल्क, कॉटन, ये सब चीजें यहाँ से लेते ले जा रहे हैं। सिल्क प्रॉब्ली चाइना था, बट कॉटन एंड ऑल दिस टेक्सटाइल थिंग्स यहाँ से लेकर जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। बट लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उनको एक लग चीज़ क्या आती है कि वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि पेटेंट लॉ की वजह से ना वहाँ पे लोगों के पास इंसेंटिव होता है अपने दिमाग को इस्तेमाल करके, यानी अपने लिए एक इंसेंटिव आता है ना, जो कि इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट है, जो कि उनके पास क्योंकि एक इंसेंटिव आया खुद काम करने के लिए, अपना जहन को यूज करने के लिए, तो यहाँ पे भी करते थे। यहाँ पे पब्लिक गुड था, जो आपकी इंटेलेक्ट है वो वहाँ पे भी था। देखें ना, हाँ। वहाँ भी फ्यूडल सिस्टम खत्म हुआ तो इंडस्ट्री ने उसको ही तो ओवरटेक किया। तो यहाँ पे वो बैलेंस के बजाय नीड बेस्ड था ना, जितना उगाते थे उतना खाते थे और ट्रेड और बार्टर करते थे। जब इंडस्ट्री लगी तो वो फिर सिर्फ प्रॉफिट मोटिव की वजह से वो चलती थी इंडस्ट्री, और उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए आपको रिसोर्स, रॉ मटेरियल, अपने तो सारे दरख्त काट दिए, तो रॉ मटेरियल भी चाहिए था और मार्केट भी चाहिए। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता हूँ, वो कहते नहीं है कि बहुत जो कुछ चीज़ें होती है ना इंसानी तारीफ होती है, बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। जैसे एक था, जैसे गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी, इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल होगी, वो ऐसे था जैसे आजकल इंटरनेट पैदा हो गया। उसके बाद एक अगली चीज़ क्या आई कि जब से इंसान एग्जिस्ट कर रहा था ना, उसकी सोसाइटी का प्रोग्रेस था ह्यूमन मसल्स, वो आ गया फिर स्टीम इंजन से, यानी कि ह्यूमन इंटेलेक्ट पे आ गया। वो लकीली या अनलकीली यूरोप में आया, और वहाँ से जब स्टीम इंजन बनाया तो फिर उनको मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अगर इंफॉर्मेशन फ्री फ्लो होता है, या अगर अकबर बादशाह होता कहता कि मैंने यहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस लगानी है, मैंने यहाँ पे मशीन्स लगानी है, और फिर एक तरह से वो भी टेक ऑफ पे जाते ना। तो फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उनको रॉ मटेरियल चाहिए थे, और वो मतलब ये बड़ा फ्रूटफुल है इसको देखना इस तरह से, क्योंकि ये बैंकर है, ये इसको फाइनेंशियल साइड से देखने में बड़ा मजा है। थैंक यू। मेरा क्योंकि साइंस बैकग्राउंड है, दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम स्टडीइंग हिस्ट्री एंड फिलोसफी, तो मुझे आप लोग इतने काबिल लोग हैं कि मुझे ना, अब मैं कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चली गई हूँ, मुझे लगता है मैं बहुत जाहिल हूँ। और तो आज की खैर जो प्रेजेंटेशन, और जो मैं ये कहूँगी कि जो मैंने हसनीस से लिया, और आई एम रेडी टू शेयर इट विद द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, वो मुझे लगा कि चश्नामे का एक जो पीस जो डॉक्टर सायरा वहीद के टॉक में बात हुई थी, मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहूंगी और उसी पे बात करना चाहूंगी, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स एंड कोलीग्स में कुछ इंटीरियर सेंस से हिंदू हैं, और जिनका कि कुछ इसके बारे में इशू था कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब यहाँ पे कॉन्कर किया ये एरिया, तो उन्होंने उनकी लेगेसी खत्म कर दी, और फिर उसमें कुछ मिथ्स हैं, कुछ बातें हैं। और जब मैंने उसके बाद जब सर्च करने की कोशिश की, और जब मैंने कुछ हिंदू ऑथर्स को पढ़ने की कोशिश की, तो वो इसके बारे में भी चशनामे का ही रेफरेंस देते हैं, लेकिन बात वो बहुत डिफरेंट कर रहे हैं, जो कि चशनामा आपने मुझसे शेयर किया और जो कि उसमें बातें थी। तो उसमें जो बातें मुझे नजर आई पढ़ने के लिए, कि उसमें जो था कि ब्राह्मण जो थे वो बहुत ही स्टेब्लिश थे उस वक्त, उनका बिजनेस बहुत सेटल था, और उनकी एक टेरिटरी थी बहुत अच्छी, और उसको राजा दाहिर को फिर शिकस्त हुई, मोहम्मद बिन कासिम ने शिकस्त दी। लेकिन फिर मोहम्मद बिन कासिम का क्या सलूक था, जिन लोगों को उसने कॉन्कर किया, जिन एरियाज को उनका कॉन्कर किया, फिर उसके बाद क्या सलूक था? तो सबसे पहले ये कि उसने सेंसस किए। जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये अंग्रेजों ने ये स्ट्रेटेजी की कि उन्होंने सेंसस किए और देखा कि कौन यहाँ पे कितने लोग पढ़े लिखे हैं, तो ये चीज, तो ये रिवायत तो हमें बहुत पहले से नजर आ रही है कि ये वाले जो लोग हैं, जो बहुत पुराने लोग हैं, जो मोहम्मद बिन कासिम के दौर में भी इसका मतलब है कि इस चीज का कॉन्सेप्ट था कि देखा जाए कि इकोनॉमी में कौन क्या रोल कर रहा है, और कितने लोग हैं जो कि अनसंग हीरोज हैं, और जो कि मतलब सेंसस में तो नजर आएंगे लेकिन अदरवाइज वो वैसे नजर नहीं आ रहे। तो मुझे ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर नजर आया। और दूसरी बात है कि जजिया के लिए जब बात हुई तो बड़े ही सुकून से बात हुई, और बहुत ही उससे बात हुई, और जो कि जितना मैंने पढ़ा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में, उससे ये बिल्कुल कॉन्ट्ररी था, और जिसके बारे में मुझे बहुत हैरत भी हुई कि मैंने कहा अच्छा, कोई लड़ाई मार कटाई नहीं हुई, कोई कुछ इस तरह का नहीं हुआ, उन्होंने कोई स्लेव्स नहीं बनाए और इस तरह की चीजें। और मोहम्मद बिन कासिम ने फिर उनको परमिशन भी दी कि वो अपने टेम्पल्स बना लें और अपने आइडल को वर्शिप करें, जो कि टॉलरेंस की एक बहुत अच्छी मिसाल मुझे नजर आई। और जब मैंने ये बातें अपने फ्रेंड्स से करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि ये वाला जो हमारा ये जो चशनामे का एक अनफॉर्चुनेटली चैप्टर है, अभी पूरी बुक मैंने उनके साथ शेयर नहीं की है, तो उन्होंने फिर इसमें इंटरेस्ट शो कर किया, और उन्होंने कहा कि हाँ वो पढ़ना चाहेंगे,
जिसमें कि मैंने उनसे जो बात हुई मेरी, वो टॉलरेंस के ऊपर बात हुई। मैंने कहा कि ये एक मिथ है कि जो हिंदू और मुसलमानों ने आके हिंदुओं को बिल्कुल मार काट के खत्म कर दिया। और इसमें एक बहुत अच्छा रिस्पेक्ट नजर आ रहा है टुवर्ड्स कल्चर एंड रिलीजन। जो कुछ भी मोहम्मद बिन कासिम ने किया उसमें कल्चर और जो भी उसका रिलीजन था के हवाले से बहुत अच्छा एक रिस्पेक्ट नजर आ रहा है। जस्टिस बहुत अच्छा नजर आ रहा है जिसमें, और एम्पैथी नजर आ रही है जिसमें उसने कहा कि अच्छा जो लोग रिच हैं वो ज्यादा जजिया देंगे और जो लोग इतने अफोर्ड नहीं कर सकते उसको उनको कम उनकी वो रखी गई, जजिया रखा गया। तो ये छोटी मोटी बातें हैं। मतलब आप लोग जितने अक्लमंद लोग हैं उनके हिसाब से तो बहुत ही कोई छोटी सी बातें हैं, बट दिस इज माय स्टडी। और ये वाकई में वो बात है जो कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ करती हूँ और उनके साथ में शेयर करती हूँ कि ये चीज मैंने सीखी है और ये चीज मैंने पढ़ी है। तो थैंक यू सो मच। So, the 5-minute presentation that I would like to give on, and the text that I would like to talk about was Mr. Sher Ali's text, the text which he gave about the great debate between the religious traditions of Christianity, Islam, and Hinduism organized by the British government before partition. So, basically, the text that he gave to us was that which it highlighted the impact that the colonial structure had on the traditional belief system of Islam, and how people's minds and the way they think rationally or logically, and the argumentation, sort of argumentation they did, even that was being influenced by the colonial structures and its political power. So the text was very enlightening, I must say, and it gave a very deep understanding of what people who were living before partition during the colonial era and during the British government, what they were going through, how their thinking was being shaped through the political economic structures and the society that was rapidly changing around them, and their attempt to hold a traditional beliefs and viewpoints of what they hold dear. And even someone as great as Mr. Nunotwi, who is considered a very big scholar in the Deobandi tradition, even his thinking was somewhat swept away from its traditional viewpoint. So the reading was very enlightening and very enriching. But some of the thing and the argument that Mr. Sher Ali was presenting was that when he gave some of the examples that how Mr. Nunotwi was trying to justify the miracle of the breaking of the moon, that and how it might not have appeared in world histories and so on. So some of the things that I found personally, I think was to be fair to Mr. Nunotwi, was that there were people who were living in a time which was like from all sides they were being attacked, and their traditional beliefs were challenged. So I think their attempt was to actually hold on to the core of the teachings of Islam, rather than trying to protect the peripheries, and lost it all in the tidal wave that was coming against them. So seeing it now in 2020, after like 120, 30, 40 years, I think we are better able to decipher what they were going through, and we can make a critical angle to it. However, I think we must not try to belittle their efforts. All of these great scholars, Sufis, which were living in the times of the colonial empires, they did the best they could with the best of their abilities, with the resources that they had. It is not to say that we shouldn't be critical. We can be critical about it, but we shouldn't belittle their efforts about it. So that was my main disagreement, which I felt Mr. Sher Ali was in some way. It was my observation. I think he might have trying to belittle that whole religious and traditional Sufi culture, that they were like not up to the mark. I think they were up to the mark, but because they were so limited, constraints by the external constraint, they did the best they could. So that's my take. Very nice. So thank you. Zabardast. Make a point. Ji, please, Ali Saab wants to make a point. Yeah. Usman, Ali wants to make a point.
जी सर. Ron bhai, thank you for the talk. I'm glad somebody else also picked up on that text and Sher Ali's talk. To speak on behalf of Sher Ali, who's not here, I'll speak in his absence just to defend him because he's not here. I think उन्होंने मौलाना नानूतवी की बढ़ाई मानी थी. इनफैक्ट उन्होंने काफ़ी उनको प्रेज भी किया था, उनको माना था as a scholar, as quite a reputable scholar. In fact, just to acknowledge him as part of that debate is to acknowledge that he is a reputable scholar. Because अगर कोई छोटे scholar होते तो it would not have been that much of a big deal. In fact, he was established. That's why this became such a spectacle, to use the word in its full meaning. However, we also picked up on the idea that uh, they were responding to their context just as we are responding to our context. And it's not so much that we are trying to establish a hierarchy, it's only to see how we have come where we are, where we've been. That's the only. But thank you for the point, nonetheless. Yes, that's very useful. अच्छा जनाब बहुत बहुत शुक्रिया. I think जितनी presentations भी हुई, it was very useful all around, sort of refresh and to think and keep thinking about these things. एक चीज मुझे जो intrigue करती है और जो मैंने उसको भी point जो है कि जो साहिबा हैं जो उनके point कि the British came from a background in which either it was Christianity or they had seen probably Judaism, a bit of it.